if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! A curious feature about the fort in बीजापुर is कि वो ये है कि कोई भी सिंगल बिल्डिंग जो है किला को डिस्क्राइब नहीं करती. Is identified as a fort. It is the entire fortified city that is called the Killa. The city is protected by thick ramparts. जो दीवार है वो चारों तरफ घूमती है. About a circumference of around 10 kilometers. सिटी में जाने के लिए सिर्फ 5 गेट हैं जो कि they provide entry to the city, and these are in turn protected by large lanes on 96 towers. एक और जो salient feature है इस किले का वो ये है कि ये ऊंचाई पे नहीं बना है जैसे कि हिंदुस्तान के बाकी किले बने हैं, कई हमने देखे भी हैं अब तक, लेकिन बल्कि ये ग्राउंड लेवल पे बना है और यही कारण है कि पूरे सिटी को फोर्टिफाइड करता है ये किला. और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आए नया एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलों का. ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और करते हैं हम इस शो में हर हफ्ते चर्चा किसी नई फेमस किले की जो हिंदुस्तान में बना है. और आज के शो में हम चर्चा करेंगे बीजापुर के किले की. A curious feature about the fort at Bijapur is that no single building is identified as the fort. It is the entire fortified city that is recognized as the Killa. The city is protected by a thick rampart. The walls run around a circumference of about 10 kilometers. Only 5 gates provide entry to the city, and these are in turn protected by large cannons placed on more than 96 towers. Another interesting feature about Bijapur fort is that it is not built at a height unlike other forts in India, but is at the ground level with the surrounding countryside. And perhaps this is the reason it was considered it necessary to fortify the whole city and treat it like a fort. Because of its cultural and architectural riches, बीजापुर जो है कई बार कहलाता है as the Agra of Deccan. ये शहर जो है हैदराबाद से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है और ये स्थित है कर्नाटका स्टेट में. तकरीबन 900 साल पूर्व चालुक्याज ने एक यहाँ पे छोटा सा किला बनाया था, and which was later on occupied by the Yadavs, the Khiljis and the Tughlaqs. After the disintegration of the Bahmani Sultanate, the fort fell into the hands of Yusuf Adil Shah और इन्होंने नींव रखी थी इस किले की, जैसा कि आज ये दिखाई देता है. The reign of the Adil Shahi Sultans is considered to be as a golden period in this region of Deccan. They were free from communal prejudice. These people जो है बहुत मान देते थे पोएट्स को, म्यूजिशियंस को, मिस्टिक को और सेंट्स को. बहुत ये मान दिया करते थे आदिल शाही सुल्तान्स. कितने ही रूलर जो थे इसमें they were scholars and musicians. From 1489 to 1686, in all 9 sultans ruled over Bijapur. They were politically very powerful and culturally rich. They contributed a lot for the development of a Deccani culture. The fortified walls which cover up the city, वो जो है circumference of 10 किलोमीटर का है. इनका जो दीवार है उसका circumference, और इसमें 6 गेट हैं which provide entry to the city.
इन्हीं गेट से जो है सड़कें निकलती थी और वो जाती थी टू द मेन सिटाडेल विच इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। जो दीवारें हैं वो ऊंची हैं और मजबूत हैं। एक मोड़ जो कि चौड़ा और गहरा है, इट रन्स अलोंग द वॉल्स प्रोवाइडिंग अ फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल। Uh, 120 bastions we have in Bijapur. 120 big guns were there over those bastions. Particular area or a particular length of a fort or wall or bastions, some bastions were entrusted for the construction to a particular noble. As per his strength, as per his wealth, and because of his resources, he had constructed. Because of this reason, different types of the designs in different bastions, even fort wall, you will find in Bijapur. It is not a uniform fort. There are enormous, the size and scale of the cannons are absolutely phenomenal, and were obviously so important that each one of the cannons actually has a name, and there are bastions for specific cannons where they could swivel, and the range was tested. एक बहुत बड़ी तोप जिसका नाम है मलिका-ए मैदान, जिसका मतलब निकलता है Empress of the battlefield, is placed on top of the tower which is named as Shahjahan Burj. ये तोप जो है यूज की गई थी इन द बैटल ऑफ तलाई कोटा, जिसमें कि विजयनगर एम्पायर की डिसाइसिव हार हुई थी। 16 शताब्दी के मध्य में जो था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें से कि दो साइड पे दो इम्पोर्टेंट पावर्स ऑफ डेक्कन रीजन थे। एक तरफ तो था विजयनगर का साम्राज्य जो कि हिंदू थे, और दूसरी तरफ थे सुल्तान ऑफ बिदर, बीजापुर, गोलकोंडा, और जिसमें जो है विजयनगर की हार हुई थी डिसाइसिव। Ali Adil Shah first, who ruled Bijapur from 1558 to 1580. As a result of his victory against Ramaraja of the Vijayanagara kingdom in the year 1565 in the Battle of Talikota, he secured enormous wealth. Plenty of wealth came to Bijapur kingdom. Because of this reason, he took two giant projects in Bijapur, one construction of a Jamia mosque and another construction of a big fort. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें अपने ऑक्सीजन लेवल पर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सक्षम आप सभी के लिए लेकर आ रहा है टॉकिंग ऑक्सीमीटर, जिसको कि हम कल यानी कि 10 जुलाई 2020 को अपने पोर्टल saktek.in, जो कि saktek.in है, वहां पर लॉन्च करने वाले हैं। इस डिवाइस से आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर कर सकते हैं, और इस मेजरमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत छोटा सा डिवाइस है जिसको आपको अपनी फिंगर से टच कराना है, और आपका जो भी ऑक्सीजन लेवल होगा वो आपको रीड करके बता देगा, और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। और इस डिवाइस को आप हमसे 3000 रुपए में खरीद सकते हैं। बट खुशखबरी ये है कि पहले 10 ऑर्डर्स पर हम 200 रुपए की छूट दे रहे हैं, और पहले 10 ऑर्डर्स 2800 रुपीज में आप लेकर जा सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी कल जैसे ही ये लॉन्च होता है, फटाफट से अपना फोन उठाइए और लैपटॉप उठाइए और ऑर्डर कर दीजिए और ले आइए ऑक्सीमीटर अपने घर। धन्यवाद। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति
दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। हाय, मैं हूं गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जो सबसे बड़ी मस्जिद है इस कॉम्प्लेक्स में वो है जामा मस्जिद, जो कि एरिया कवर करती है तकरीबन 16,000 स्क्वायर फीट का, और जिसमें तकरीबन 5,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। द हाई डोम ऑफ द मॉस्क हैज एन richly decorated arch. The high dome of the mosque has a beautifully decorated arch. Emphasis given to the construction of religious buildings. Courtyards of the mosques were expanded, the fortifications were rebuilt. So there was a very, very strong statement of spiritual and temporal as the Sultan settled. Rows of ornate pillars separate the courtyard of the mosque from the gallery. The interior space has been utilized very well by arranging them into 5 galleries that lead up to the Qibla. मॉस्क के ऊपर जो था गोल्ड पेंट लगाया गया था in the 17th century, और उस समय सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह। Building of the minarets, the Jama masjids, these were all statements of victory. And these were all built as indications and indicators of their successes in war. अली आदिल शाह द फर्स्ट ने बनवाया था गगन महल जब बैटल ऑफ तलाई कोटा में उनकी जीत हुई थी। तो जो आम जनता थी वो इनको मानती थी एज अ सूफी सेंट। इंडीड ही वाज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स। वो मैथमेटिशियन थे, म्यूजिशियन थे, पोएट थे और आर्टिस्ट थे। देयर इज अ लार्ज हॉल टू द रियर बट इट लाइज इन ruins टुडे। आदिल शाही हुक्मरानों ने यहाँ की तहजीब व तमद्दुन के लिए बाहर से उलमाए कराम को, आर्किटेक्ट्स को और फ़न तामीर के फ़नकारों को बुलाया और इस शहर को एक आलमी हैसियत से उसे बनवाया। इब्राहिम आदिल शाह द सेकंड के राज में कई बिल्डिंग बनाई गई थी विच सर्व्ड एज द वेन्यू फॉर प्लेजर। जल महल या जल मंदिर, ये 5 स्टोरी इमारत जो है टिपिकल हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी हुई, ये प्रोमिनेंट है इस काल की। 60 मंजिल was built according to the command of Ibrahim II to sport with his beloved Rambha,
जो ओरिजिनल 7 मंजिल की ये इमारत थी और ये तकरीबन 30 मीटर ऊंची थी जमीन से, उसमें से सिर्फ 5 ही मंजिल ही अभी तक सरवाइव करती हैं। इस सुल्तान के टेस्ट को भी दर्शाता है, जिसने कि अंदर के जो इंटीरियर थे उसको गोल्ड से पेंट कराया था। Because of intermixture of different communities and ethnic groups, ये different kind of culture developed. That culture goes in history as a Bijapur culture. जो डेकनीज पेंटिंग स्टाइल है वो इवॉल्व हुआ था इन बिटवीन 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में। अर्ली वर्क इन दीज मिनिएचर्स शो अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस। जो बाद के स्पेसिमेन थे उनमें जो था मुगलियाई सल्तनत के ट्रेसेस दिखते हैं। जो डेकनी स्टाइल है वो ब्लेंड है ऑफ हिंदूज, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स। The Adil Shahi rulers of Bijapur, like their contemporary Mughals in the north, were very ambitious builders. And this city is full of majestic monuments, ruins of palaces, majestic mosques and towering domes that bear testimony to that glorious era of construction. Work on the Ibrahim Roza was started by the Sultan as a mausoleum for his wife Begum Taj Sultana. बाद में उनको भी यहीं पे दफन किया गया था along with some members of his family. ये वही कारण है जिसका कि इनका नाम पे ये मकबरा है। इस जगह के जो मिनरेट्स हैं वो तकरीबन 24 मीटर ऊंचे हैं और ऐसा माना जाता है कि इन मिनट्स को देख के ही ताजमहल के मिनट्स बनाने की प्रेरणा मिली होगी। ये जो है परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ टर्को ऑटोमन बिल्डिंग स्टाइल की। A stone inscription found in the compound boasts, when this edifice raised its head from the ground, it seems the new heaven was being unveiled. जो जन्नत के बाग हैं उन्होंने भी अपनी ब्यूटी इसी जगह से ली थी। रे मन मूरख जान, रे मन मूरख जान, आन रे मन मूरख जान, हर को पहचान, रे मन मूरख जान, आन रे मन मूरख जान। अब रंगों से भरिए अपनी जिंदगी। रेजलाइन फाउंडेशन आपके लिए लाया है कलरिंग टैक्टाइल बुक। इस टैक्टाइल ड्राइंग बुक के द्वारा बच्चे अपने फाइन मोटर स्किल और टैक्टाइल परसेप्शन को डेवलप कर सकते हैं। इस बुक में दी गई ड्राइंग्स को बच्चे मार्केट में इजीली अवेलेबल कलर्स के द्वारा फिल कर सकते हैं। ये बुक मात्र 240 रुपए में उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368 या 9266626367। हैप्पी कलरिंग। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से
सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। द मस्जिद जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द इब्राहिम रोजा। इब्राहिम जो थे वॉज एन अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन और भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे और उनको एक टाइटल भी दिया गया था लोगों द्वारा, वो था जगत गुरु का। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज philosophical scholarship and Sufi mystic pursuits. जो बिल्डिंग बीजापुर में they were inspired and influenced by the Bahmani architecture, but evolved to a much greater refinement here. कि आज के रूप में जो डोम थे वहाँ पे ऐसे लगता था कि वो किसी कमल के फूल से निकल रहे हों। The Adil Shahi rulers of Bijapur never maintained any distance between themselves and their people. They adopted the local language, the costume and cuisine. They intermarried with the local people and encouraged the use of Marathi in the courts. Relatively better protected from invaders than their contemporaries in the north, they could patronize generously art, literature and music. Many of them were themselves very talented people. For instance, Ibrahim Adil Shah II, who composed poems and composed an anthology called Kitab-e-Navras. He also underwent systematic training in the Drupad style of singing. Some were disciples of Sufi saints, and they could very easily encourage the evolution of a culture here in Deccan that is a priceless heritage of all Indians. वो इब्राहिम ही थे जिन्होंने शहर की खोज करी थी, नवरसपुर की, और इसको वो ट्विन सिटी बोला गया था। एज इट वाज इब्राहिम हु कंसीव्ड द सिटी ऑफ नवरसपुर एंड इट वाज कंसीव्ड एज द ट्विन सिटी ऑफ बीजापुर, जहाँ पे उन्होंने लिखी थी किताबे नवरस, एन इम्प्रेसिव ट्रीटीज ऑफ एस्थेटिक्स। नवरसपुर जो है वो शहर बुरी तरह तबाह हो गया था when मलिक अंबर invaded it, और अब तो सिर्फ खंडर ही रह गए हैं of this place. मान मान कहा मान ले मूर, मान 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 कहा मान ले। Their rule is also an interesting example of not only of benevolence and political justice, but also a tremendous urge on the part of the rulers to develop a composite culture. The Adil Shahis of Bijapur represented a very interesting character of India's cosmopolitan history. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डीजे शेजवुड, आज आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइट, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइट। हम चलते चले, ये जिंदगी रुकने का नाम है। चलते चलो, ये जिंदगी थमने का नाम है, चलने का नाम है। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइट, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइट, अ फ्लाइट ऑफ लाइट। नमस्कार दोस्तों, मैं नूपुर सक्षम से आज आप लोगों के सामने एक नई टेक्सटाइल बुक के विषय में बताना चाहती हूँ, जो बहुत जल्द आपको मिल पाएगी sectech.in पे। इस पुस्तक का नाम है अक्षर और संख्या ज्ञान पुस्तक। जी हाँ, यह पुस्तक आकर्षक स्पर्श रेखा चित्रों के साथ शब्दों को जोड़कर हिंदी भाषा के ज्ञान और शब्दावली को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित की गई है। यह पुस्तक दृष्टिबाधित बच्चों को वर्णमाला, हिंदी स्वरों और व्यंजनों को स्पर्श रेखा चित्रों से जोड़कर सीखने में सक्षम बनाती है। इस पुस्तक में बच्चों को स्कूल के लिए
तैयार करने में मददगार पूर्व स्कूली विषयों जैसे वर्णमाला, गिनती और 12 खड़ी को शामिल किया गया है, जो इसे हिंदी ब्रेल लिपि और भाषा सीखने के लिए आसान और महत्वपूर्ण स्पर्श रेखाचित पुस्तक बनाती है। इस पुस्तक की कीमत मात्र 580 रुपए है, तो यह पुस्तक आपको बहुत जल्द sectech.in पर मिल सकती है, तो इसलिए आप वहां से ये परचेज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इन नंबरों पर 9266626368 और एक लैंडलाइन नंबर भी है 011-424-11015। थैंक यू। जो सारे आदिल शाही सुल्तान थे वो अपने प्रेडिसेसर से compete किया करते थे to build on even a greater scale. जो बिल्डिंग्स बाद में बनी थी वो काफी ऑर्नेट है। असर महल was built like a courtyard by आदिल शाह सेकंड। जो मोहम्मद शाह थे उन्होंने ये फिर से बनवाया था और इसको डेकोरेट किया था उन्होंने विद पेंटिंग्स इन दी 17th सेंचुरी। एक इटली से पेंटर स्पेशली इसी काम के लिए बुलाया गया था और उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया फ्लावर वासेस में और पोर्ट्रेट्स इन यूरोपियन स्टाइल्स। इस बिल्डिंग को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि द रॉयल हेयर ऑफ द प्रॉफिट वाज केप्ट हियर। This grand dome at Bijapur is one of the world's most famous buildings. It is reckoned among the largest domes ever built, and of course it is claimed that as a single cellular construction, it is unique. Nothing like this has ever been attempted anywhere else. And although its walls are quite plain, not ornately decorated like those of other buildings in Bijapur, in sheer grandeur of conception and expertise of execution, it is quite unique. Work on the Gol Gumbad was started by Muhammad Shah, the ruler after Ibrahim II. वो ये बात जानते थे कि to match the Ibrahim Roza was not an easy task. He decided on the grandeur. The diameter of the outer dome is 37 meters and the circle has been set in a square of 60 meters. Octagonal minarets have been placed on the four corners, topped with small cupolas. The hall enclosed by the dome is a square and it is 60 meters high. ये इमारत का जो सीलिंग है इसको आप देखें तो देखते ही रह जाते हो। एक गैलरी भी है जो कि चारों तरफ चलती है और उसकी हाइट है 35 मीटर। एक छोटी सी आवाज भी जो है एक नहीं दो नहीं 11 या 12 एकोस प्रोड्यूस करती है। This is where the graves of the Sultan, his young wife Uruz Begum, his beloved Rambha and his grandchild are situated. A kind of a very strong physical symbol of what would happen to human existence anyway. And there is a desire to touch the divine and aspects of the utterly mundane, the very earthy, but very noble and sort of ennobling, trying to touch the sky as it were and remain rooted in the earth. I mean, these are all aspects which are commonly shared by humanity all over. Ali Adil Shah was a great poet and a generous patron of arts. उन्होंने एक मकबरा अपने लिए डिजाइन किया था लेकिन वो उनके लाइफ काल में जो है पूरा नहीं हो पाया था। आजकल इसको बोला जाता है 12 कमात और the 12 arches and it is reckoned to be the most beautiful ruins in the city. It was really their consolidated wealth that attracted the Mughals. Although Akbar did not move as far as destabilizing
the Deccan Sultanates. It was Aurangzeb who sought to consolidate the Deccan, finally demolished the Deccan Sultanate. मुगल सेनाएं जो थी उनका प्रेशर जो था डेक्कन पे जो था, it had become unbearable by the 17th century. Aurangzeb campaign had started in his father's lifetime. ये वही टाइम था जबकि बीजापुर को झेलनी पड़ती थी मराठाओं की सेनाएं, और बीजापुर की जो है पावर एंड प्रॉस्पेरिटी डिक्लाइंड शार्पली. जो आखिरी रूलर थे बीजापुर का, उनको गिरफ्तार कर लिया था औरंगजेब ने और उनको भेज दिया गया था दौलताबाद किले में, जहां पे कि उनकी मौत हो गई थी आगे. ऐसा शहर था, एक बहुत खूबसूरत शहर बीजापुर. हमारे बाप दादाओं जो बोलते थे उस दौर में बोलते आए हैं, इतना खूबसूरत है कि कुछ पूछो मत. जैसा कि हमारे अरबस्तान में हमारे उस जमाने में दादाओं ने जैसा मदीने को पसंद करते थे, वैसा बीजापुर में हमारे वली अल्लाह जो बीजापुर को पसंद करते थे. आज मुल्क जो नहीं रहा है, बीजापुर शहर वैसा नहीं रहा है आज. बीजापुर की पूरी खूबसूरती चली गई अभी. बीजापुर जो है बहुत जल्दी बदल रहा है इन चेंजिंग टाइम्स. जनसंख्या और एक्सपेंडिंग सिटी जो है, बढ़ती हुई जनसंख्या और एक्सपेंडिंग शहर ने जो है इन बहुत ही असर छोड़ा है बीजापुर के ऊपर. पर ऐसी बिल्डिंग जो कि फिट है टू एंटर द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनका जो है खात्मा होता जा रहा है धीरे धीरे. Protection of this priceless legacy is a matter of national pride and the duty of all citizens. Even greater is to protect the legacy of communal harmony, fusion of cultures, and Bijapur stands for it. So दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलों का. ये शो जो आप सुन रहे थे आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है A Flight of Life. और आज के शो में हमने चर्चा करी थी बीजापुर के किले की. अगर आप मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com. आप हमारी वेबसाइट जो कि www.radioudan.com है, वहाँ पे जाके भी एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर के आप मुझे फीडबैक सेंड कर सकते हैं. आप दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो कि है RADIOUDAAN, और वहाँ पे आप जाके बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना. तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके उस भामरी को समेटने की. आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक से दिन, ठीक से समय, ठीक से इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और करेंगे हम चर्चा उस आने वाले शो में किसी नए किले की. तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस. If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, A Flight of Life. Happy listening!